Do you pay attention to details? I mean, the things present around you, people, animal, and other common things that are around you all the time. In the modern times, we do have this attention problem. We don't pay attention actually to the things that are very common to us. जब हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, उसकी अंदर की खूबसूरती को समझते हैं, it is a delight to our eyes, our heart and our minds. The poem number first, The Squirrel of the NCERT book, The Honeycomb of class 7th is all about this theme only. वो इसी चीज़ के बारे में है, इसी टॉपिक के बारे में है that we have to observe things very closely, हम उनको अच्छे से जानें. The poetess Mrs. Armstrong is of the opinion that we should watch things very closely. She watches a squirrel which is found near a tree in a garden or somewhere, and she describes this squirrel in a very simplistic manner. So let's start with our poem number first of Honeycomb book, class 7th NCERT, This Squirrel. Our objectives for today's video are as follows. We will read about the poet, we will be reading and understanding the poem, then we will be summarizing the poem and the vocab builder part, and of course we will complete our poem of class 7th with the exercise part. So quickly let's move towards the about the poet part. अब हम इस poem को जिसने लिखा है उनके बारे में समझेंगे. Mildred Bowers Armstrong, this is her name. Mildred Bowers Armstrong, 1901-1984, was a children's book author in 1950s. So she used to write about the children's books. बच्चों के बारे में, बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं उनके बारे में ये लिखती थी. She got her bachelor's degree from Northwestern University in 1923. This is about her education. The poem is a reflection of the poet's desire to compose poetry on the most ordinary elements that we come across in our daily lives. This is very important part. Important why? ये जो पोएम है ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्शन है. किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है? जो इस पोएम की पोएट है उनके मन में एक डिज़ायर है, उनके मन में एक इच्छा है टू कंपोज पोएट्री. उनके मन में एक पोएट्री लिखने की इच्छा है. और टॉपिक क्या होगा उस पोएम का? टू राइट ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एलिमेंट्स. बिल्कुल कॉमन चीज़ें जो हमारे आसपास मिलती हैं. इट कैन बी पीपल, इट कैन बी एनिमल्स, इट कैन बी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, लेकिन वे सारी चीज़ें कॉमन होंगी जो सभी लोगों के सामने आती हैं. और उनके बारे में, उनकी ऑर्डिनरी लाइफ्स के बारे में लिखना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ये आर्मस्ट्रॉन्ग के मन में है, ये उनकी इच्छा है. दिस इज द पोएम ऑल अबाउट. शी हैज़ ऑल्सो रिटन द बुक ट्विस्ट और स्मोक which is also a children's book and the genre is also poetry. ये भी एक poem की तरह है. Let's move towards the reading and understanding the poem part. We will read the poem line by line and understand each and every word and what the poetess actually wants to convey. वो हम तक किस message को पहुंचाना चाहती है. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Just 6 lines poem. ये poem सिर्फ 6 lines की है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ जो meaning है वो काफ़ी deep है. It is beyond 6 lines. He wore a question mark for tail. जब poetess the squirrel के बारे में बताना शुरू करती हैं अपनी poem में, तो वो कहती है कि जो squirrel है उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज समथिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. द पोएट्स वांट्स टू टेल अस अबाउट दिस स्क्विरल. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रही है. और वो कहती हैं कि जो इनकी टेल है स्क्विरल की, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है. बट इफ यू टर्न देम, अगर स्क्विरल का फेस दूसरी साइड होगा, देन वी कैन सी दैट द टेल इज समवट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन मार्क. An overcoat of grey. Second physical feature that the poetess wants to convey to us, जो second characteristic है वो है squirrel है, उसके कलर के बारे में. So the squirrel that the poetess is watching, जो poetess देख रही है, उस squirrel का कलर क्या है? Grey. Grey. So Grey when written in the US language it is Gray.
एन ओवरकोट, एक लंबे से कोट की तरह उसने अपनी जो स्किन है, फर वाली जो उसकी स्किन है जिस पे रुआं है, वो उसने पहन रखी है, लाइक अ बिग कोट। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। और अगर आपने स्क्विरल को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा स्क्विरल जब भी खाना खाती है, जो नट वो खाना चाहती है उसको खाने के लिए बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। उसकी जो पूंछ होती है, उनकी जो टेल होती है, वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आ जाती है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। He liked to tease and play. As you know, this squirrel is a very frisky animal. It is playful animal, full of energy. आप squirrel की तरफ जाएंगे, वो एकदम से भागना शुरू कर देगी। वो पेड़ पे इतनी जल्दी से चढ़ जाएगी, फटाफट उतर जाएगी, nuts खाएगी in a very cutest manner possible. Poetess wants to tell us कि this squirrel liked to tease and play. Squirrel को क्या क्या पसंद था? प्ले करना, खेलना पसंद था, उसको टीज करना पसंद था, मजाक की फॉर्म में एक दूसरे को परेशान करना पसंद था, उनका मजाक उड़ाना पसंद था। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, नाउ द पोएटेस सेज, पोएटेस उसके फ्रेंड्स अगर स्क्विरल के ट्री के पास, हिज ट्री हेयर मीन्स हिज होम, जो एक स्क्विरल का होम होता है, उसका जो घर होता है, दिस स्क्विरल्स ट्री, स्क्विरल के ट्री के आसपास उसके साथ उसके पीछे भागना शुरू करेंगे। ही वेंट द अदर वे, और उस प्लेफुल मैनर में स्क्विरल क्या करेगी? दूसरी तरफ भागना शुरू कर देगी। ही वोंट अलाउ द चिल्ड्रन टू चेज हर, वो ये कोशिश करेंगे कि चिल्ड्रन उसका पीछा ना करें या उसको पकड़ ना सके। सो दीज वर द 6 लाइन्स ऑफ द पोएम। I hope you got all the 6 lines. These are very simple lines. He wore a question mark for tail. उसकी जो टेल है वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे कलर का जो उसका फर है, जो उसकी स्किन है, वो एक ओवर कोट की तरह, एक पूरे बड़े कोट की तरह उसने पहन रखी है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, और वो बिल्कुल सीधी बैठती है जब वो उस नट को खाने के लिए तैयार होती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एक स्क्विरल का बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि स्क्विरल का जो बिहेवियर है वो कितना प्लेफुल है और कैसे वो टीज करती है खेल खेल में। इफ़ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट दी अदर वे, और जब भी बच्चे उसके पीछे भागते हैं, उसके पेड़ के आसपास भागते हैं, तो स्क्विरल एक दूसरी दिशा में या दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर और इफ़ यू फाइंड आउट ऑन गूगल, यू विल फाइंड अ सिमिलर पोएम विच इज़ नेम्ड The Squirrel. Now in that poem you'll also find out a similar theme, एक बिल्कुल सेम टॉपिक के बारे में पोएट ने बताने की कोशिश की है। If you read that poem you'll find it great. I think that poem is in class 2nd. अगर आप अपने छोटे भाई बहन या younger brother and sister को वो poem बताना चाहेंगे, it will be great. Take a look at this poem. Whisky, frisky, hippity hop, up he goes to the tree top. Whirly twirly, round and round, down the scampers to the ground. Furly curly, what a tail, tall as a feather, broad as a sail. Where's the supper in the cell? Snappy, crackty, out it fell. So a great poem to learn. I hope you'll learn that poem and you'll find it very beautiful. Let's move on to the next part of our video, which is the summary of the poem. In this we'll describe the poem in few lines in our own words. Summarizing means किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में कम शब्दों में लिखना। This poem is a simple description of a squirrel. The word important here is simple description. As you see, कोई भी मुश्किल वर्ड को यूज़ नहीं किया गया था, हर वर्ड बिल्कुल सिंपल था। So it is a simple description. Describe किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। A small frisky creature. Squirrel का साइज बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन वो बिल्कुल एक frisky creature होता है। It is very frisky in nature. उसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। Frisky means something which is very full of energy, something which is very playful. It sits on a tree straight up and love to eat nuts. Its skin looks like an overcoat. जो स्क्विरल की स्किन है वो कैसी दिखाई देती है? एक ओवरकोट की, जो आपने ड्रेस पहन ली उसके बाद एक बड़ा सा आप कोट पहनते हैं, उसको बोलते हैं ओवरकोट। विद ग्रे स्ट्रिप्स एंड द टेल इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क। जो एक स्क्विरल की जो स्किन है उस पर ग्रे कलर की स्ट्रिप्स हैं एंड द टेल इज लाइक ए क्वेश्चन मार्क। इट लव्स टू प्ले अराउंड। स्क्विरल को क्या पसंद है? लव्स टू प्ले अराउंड, बट रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन सीइंग पीपल कमिंग इट्स वे। अगर वो ये देख ले कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं तो इट रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। द प्लेफुल नेचर ऑफ द स्क्विरल। सो दिस वॉज द समरी. यू हैव टू राइट इट दिस इन योर नोटबुक एंड लर्न इट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर पोएम इज द वोकैब बिल्डर पार्ट. नाउ एज आई टोल्ड यू कि पोएम में जो वर्ड्स का जिनका यूज़ किया गया था वे काफ़ी सिंपल है, बट
we used, we are a complex being. We use some of the words which are not so simple. Let's start. Ordinary. Ordinary here means something which is very normal or very common. Why we are discussing ordinary? Because the poetess जिसने लिखा है उन्होंने बिल्कुल एक कॉमन टॉपिक, एक कॉमन क्रिएचर एनिमल को चूज किया जो सभी के आसपास होता है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. नाउ फ्रिस्की, एज आई टोल्ड यू, इट मीन्स प्लेफुल और फुल ऑफ एनर्जी. ग्रे मीन्स द कलर ग्रे एंड टीज मीन्स टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना. कंपोज मीन्स टू राइट और क्रिएट समथिंग. आप कंपोज करते किसी चीज़ को, लिखते हैं या उसको बनाते हैं. द म्यूजिक इज कंपोज, द पोएम इज कंपोज, इट इज रिटन. पोटेंट हेयर मीन्स पावरफुल और समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग. जो चीज़ ज़्यादा शक्तिशाली हो उसको बोलते हैं पोटेंट. Let's move towards the last section of our video, which is the exercise part. The first question. What does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? The poet says so because the bushy tail of the squirrel sitting on the ground or a tree is curled back on its body in a shape that looks very much similar to a question mark. The poet is trying to convey. यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को समझना है. वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, और बेसिकली हम बोलते हैं कि द एनिमल हैज़ ए टेल, द स्क्विरल हैज़ ए टेल, इसकी टेल है. बट हेयर द वर्ड वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, इट मीन्स द सेम, बट ये हम बिल्कुल अपनी कॉमन भाषा में इसको यूज़ नहीं करते. लाइक अगर आप किसी को पूछना चाहेंगे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, यू कैन ऑलवेज आस्क विच परफ्यूम यू आर वियरिंग. ओके, ड्रेस को वियर किया जाता है, लेकिन यू कैन ऑल्सो से, दिस इज इंग्लिश अ फनी लैंग्वेज, यू कैन ऑल्सो से विच परफ्यूम यू आर वियरिंग. वो एक क्वेश्चन मार्क फॉर टेल का मीनिंग है कि जो स्क्विरल ने, जो उसकी टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह क्यों है, ऐसा पोएट क्यों बोलते हैं. द पोएट सेज सो, वो ऐसा बोलते हैं बिकॉज द बुशी टेल ऑफ द स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड और ट्री. जब पोएट ने स्क्विरल को देखा तो उसने देखा जब स्क्विरल बैठी हुई थी ट्री पे या ग्राउंड पे, उसकी जो टेल है वो कर्ल्ड बैक है, बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, ऑन इट्स बॉडी इन अ शेप. और उसकी शेप कैसी है? दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू ए क्वेश्चन मार्क. And now we have described its tail as well. If you want to do this part of the question, you can do it as well. Draw a squirrel sitting on the ground. Second question. He liked to tease and play. Who is teasing whom and how? The question is saying he liked to tease and play. Who is teasing whom? कौन किसे टीज कर रहा है, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है और क्यों उड़ा रहा है? According to the poem, the squirrel is teasing the poet and his friends. कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन फन बना रहा है? The squirrel. और किसका उड़ा रहा है? इट इज टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स. जब पोएट और उसके दोस्त स्क्विरल के पीछे भागना शुरू करते हैं तो स्क्विरल उनका मजाक उड़ाती है. When the poet runs around the squirrel's tree, it runs in the opposite direction to tease and play. और कैसे मजाक उड़ा रही है? ऐसे कुछ, क्योंकि स्क्विरल बोल तो सकती नहीं, उनका मजाक उड़ाने का तरीका, इट रन्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में बच्चे रन कर रहे थे उसी अपोजिट डायरेक्शन में स्क्विरल रन करना शुरू करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? नो, यूजुअली वी डू नॉट से दैट एनिमल वियर्स अ टेल. ज़्यादातर हम ये नहीं बोलते हैं. हम मोस्ट कॉमन वे में क्या यूज़ करते हैं? वी प्रेफर इट हैज़ अ टेल. पोएम में क्या यूज़ किया गया है? इट वियर्स अ टेल. डिस्क्राइब अ स्क्विरल इन योर ओन वर्ड्स. जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्क्राइब किया एक स्क्विरल को. अ स्क्विरल इज अ स्मॉल फ्रिस्की एनिमल. एक छोटी सी बिल्कुल एनर्जी से भरपूर फ्रिस्की एनिमल है. इट इज जनरली ग्रे इन कलर विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बैक. स्क्विरल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उनके कलर्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं उनके अलग से कलर होते हैं. बट द स्क्विरल्स ऑलवेज हैव दिस फर ऑन इट्स बॉडी. स्क्विरल के ज़्यादातर हमेशा उसकी बॉडी पर क्या होते हैं? उसके फर होते हैं. उसकी टेल एक बिल्कुल बुश की तरह, जैसे एक झाड़ियों की तरह एक बुश होती है, वैसे उसकी बुशी सी टेल होती है. इट लिव्स ऑन ट्रीज एंड लाइक टू ईट नट्स. इट इज़ अ प्लेफुल एंड नॉटी एनिमल. वो ट्रीज पे रहती है ज़्यादातर एंड इट लाइक्स टू ईट नट्स. उसे नट्स खाना काफ़ी अच्छा लगता है. इट इज़ अ प्लेफुल एंड नॉटी एनिमल. द स्क्विरल डिड नॉट लाइक टू बी फॉलोड. विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दिस? And if we ran around his tree, he went the other way. These two lines from the poem, they tell us about that squirrel does not want to be followed. Squirrel नहीं चाहती कि कोई उसका पीछा करे या उसको फॉलो करे. So इन लाइन्स का मतलब है कि जब भी उसकी तरफ कोई आता है तो स्क्विरल एक डिफरेंट डायरेक्शन में भागना शुरू करती है.
The last question, what does the poem say about the poet's choice of subject? पोएट ने अपनी पोएम का सब्जेक्ट किसको चूज किया है? द स्क्विरल। और इस सब्जेक्ट के बारे में वो पोएम क्या कहती है? द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिजायर टू कंपोज पोएट्री ऑन मोस्ट ऑर्डिनरी एलिमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे सराउंडिंग। ये पोएम एक रिफ्लेक्शन है। पोएम हमको बताती है, वो आइडिया कन्वे करने की कोशिश करती है कि पोएट के मन में जो इच्छा है वो इच्छा यह है कि पोएट कंपोज करना चाहती है एक ऐसी पोएट्री जो किस पर बेस्ड हो? दी ऑर्डिनरी एलिमेंट्स, बिल्कुल कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे सराउंडिंग, डे टू डे सराउंडिंग में हमारे आसपास प्रेजेंट हो। अ स्क्विरल इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल दैट वी सी अराउंड अस। और स्क्विरल एक ऐसा एनिमल है जो हमारे ज्यादातर आसपास हमको दिखाई देता है। येट वेरी फ्यू ऑफ अस वुड हैव थॉट इट एज अ पोटेंट सब्जेक्ट। वी गॉट इट्स मीनिंग फ्रॉम हियर, अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तो हम सभी के लिए जो हम एक स्क्विरल है उसको रोज देखते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, तो हमको नहीं लगता कि एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लिखा जाना चाहिए। बट पोएटेस का यहाँ पर डिज़ायर देखिए कि उनका ये डिज़ायर है कि वो बिल्कुल एक छोटी सी कॉमन चीज़ के ऊपर अपने पोएम को लिखें। द पोएट वेरी सिंपलिस्टिकली, नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट the poetess is trying to write about this simple subject in a very simple language. She simplistically discusses the various aspects of this squirrel. Squirrel के जो different aspects हैं, उसके characteristics हैं, उसका behavior है, वो कैसे काम करती है, कैसे अपने नट्स खाती है, इन सभी के बारे में पोएट ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया है, विच ईच वन ऑफ अस मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड क्लोजली। हमने भी कभी कभी इन चीज़ों के बारे में जो पोएट ने अभी हमें बताया उनके बारे में अगर हम याद करें तो वी डू फाइंड सम मेमोरीज ऑफ स्क्विरल इनसाइड आवर हेड, द वे शी सिट्स, the way she eats the nuts and each and everything. So this was the complete poem, which was a very small poem. I hope you got each and everything, the exercise part, the vocab builder part, the summary part, the poem, and the extra credit for this new poem which is with the same subject, and the about the poet part. I hope after watching this video you won't have any doubts about this simple poem. I hope to see you in the next video. Till then, stay smiling, stay playful like the squirrel, and keep enjoying your life. God bless you all. Thank you.